Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge, that is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease, and follow the key COVID appropriate behavior like washing your hands gradually at regular interval of time and wearing masks, and keep the social distance whenever you go out in the public. Now let's start with our chapter, that is chapter number 4, the Chinese civilization. In this chapter, we will do the origin and location of Chinese civilization, features of Chinese civilization, contribution of Chinese civilization to modern world, and discovery, decline of the Chinese civilization. So first one is discovery and location. We have with map as the Chinese civilization is one of the earliest civilization in the world history. World history में Chinese civilization दुनिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक है. अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट द सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्लरिशिंग अराउंड 2000 BCE along the river banks of the Huanghe River, also known as Yellow Rivers. This river is also called the Sorrow of China because it changed its course after the flood, causing damage to the crops and settlement in the river valley. आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली चाइनीज सिविलाइजेशन लगभग 2000 BCE से पहले रिवर हुआंग ही के किनारों पर फ्लरिश हुई, जिसको कि येलो रिवर भी कहा जाता है. इस रिवर को सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है क्योंकि इसका रूट चेंज करने की वजह से इसमें बहुत ड्रास्टिक फ्लड आते थे, जिसकी वजह से क्रॉप्स और जो वहाँ पे सिविलाइजेशन रहती थी वो डैमेज हुई. आर्कियोलॉजिस्ट टेल अस अबाउट द फ्लरिशिंग कल्चर ऑफ चाइनीज एट अर्ली एज 4000 BCE when people have started growing their own food. Villages along the Huanghe River by 2000 BCE, they not only knew the use of wheel, carts and pottery, but also started harvesting, weaving silk, making baked clay bricks, and even taking flood control and irrigation measure by building canals. आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली ये सिविलाइजेशन लगभग 4000 BCE से पहले फ्लरिश हुई, जब चाइनीज़ लोगों ने अपना खुद का फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और एक जगह पे इकट्ठे विलेज के रूप में हुआंगी रिवर के पास रहना शुरू कर दिया. और लगभग 2000 BCE से पहले उनको ना सिर्फ व्हील का कार्ट और पॉटरी के लिए यूज़ आता था, बल्कि उन्होंने खेती करनी और कपड़े बनाना भी शुरू कर दिया था. वीविंग सिल्क इज़ देयर टेक्निक. वो बेक्ड क्ले से ब्रिक्स बनाते थे और वो बाढ़ को कंट्रोल करने के भी मेजर्स जानते थे. नंबर ऑफ डायनेस्टीज रूल चाइना. द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन इंक्लूड डिफरेंट डायनेस्टीज, नेम ऑफ द डिफरेंट किंग्स. कई डायनेस्टीज ने चाइना पे रूल किया. डिफरेंट डायनेस्टी के नेम अकॉर्डिंग टू देयर किंग्स नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज यिया डायनेस्टी. यिया डायनेस्टी थी 2000 BCE से लेके 1600 BCE तक. शैंग डायनेस्टी थी 1600 BCE से लेके 1046 BCE तक. ज़ोउ डायनेस्टी थी 1046 BCE से लेके 256 BCE तक. किन डायनेस्टी थी 221 BCE से लेके 206 BCE तक. एंड देन वी हैव एंडेड विद हान डायनेस्टी, दैट इज फ्रॉम 206 BCE to 220 CE. Legend has it that China's earliest ruling dynasty, Xia dynasty, rules between 1994 BCE to 1523 BCE. However, there are not much evidence supporting Xia dynasty. लेजेंड्स के अकॉर्डिंगली चाइनीज़ डायनेस्टी जो सबसे पहले रूलिंग थी दैट वाज यिया डायनेस्टी, पर इसका कोई भी ज़्यादा एविडेंस प्रोवाइडेड नहीं है. हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है. फर्स्ट वन इज शैंग डायनेस्टी जो कि 1600 BCE में पावर में आई. शैंग डायनेस्टी वो थी जिन्होंने सबसे पहले चाइना का सबसे बड़ा एरिया है वो अपने कंट्रोल में किया अंडर सिंगल रूल. और शान डायनेस्टी के दौरान सोशल जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि अमीरों और गरीबों में डिस्टिंक्शन लाइन थी बहुत ज़्यादा थी. और शैंग डायनेस्टी ने लगभग 700 ईयर्स तक रूल किया. नेक्स्ट आ जाती है शान डायनेस्टी के बाद ज़ोउ डायनेस्टी. उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था इन अराउंड 1046 BCE में.
याओ डायनेस्टी के लोग जो थे वो बिल्डिंग बनाने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने रोड्स, कैनल्स बनाई किंगडम में, और जिससे कि गुड्स को लेके जाना और लोगों को ट्रैवल करना ईजी हुआ। और इसी पीरियड के दौरान कई सिटीज़ भी ग्रो अप हुई। जाओ चाइना वॉज डॉटेड विद वर्ल्ड सिटीज़। आउटसाइड दोज बाउंड्रीज लिव्ड द मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन एंड पीसेंट्स। जाओ चाइना की जो मेन सिटी होती थी वो चारों तरफ चारदीवारी से घिरी होती थी, और उस सिटी के बाद मर्चेंट, क्राफ्टमैन एंड पेजेंट्स रहते थे। इसके अलावा लिटरेचर एंड एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस वक्त का टाइम जाओ डायनेस्टी का पीस, शांति और स्टेबिलिटी का था। 10 पीपल, और वो जो लोग थे आर्मी में जाने की बजाय अपनी बिजनेस एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते थे। एंड जाओ डायनेस्टी ने भी लगभग 700 ईयर्स तक रूल आउट किया। 221 BCE में किन डायनेस्टी ने कंट्रोल किया सिविलाइज चाइना पर। इस डायनेस्टी ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और चाइना को फर्स्ट एम्पायर में कन्वर्ट किया। किन शी हुआंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द फर्स्ट ट्रू एम्परर ऑफ चाइना। किन शी हुआंग ने खुद को चाइना का फर्स्ट एम्परर डिक्लेयर किया। हान डायनेस्टी बिगेन एट 206 BCE एंड लास्टेड फॉर 400 ईयर अंटिल 220 CE। इट वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ चाइना। हान डायनेस्टी ने रूल आउट स्टार्ट किया था 206 BCE में, और ये रहा 220 BCE तक। लगभग 400 साल तक इन्होंने राज किया, और इनके राज के दौरान चाइना की सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई। इसको ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव मेन फीचर ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले आ जाती है टाउन प्लानिंग। अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट चाइना स्टार्टेड इन हुआंगी वैली इन द लेटर नियोलिथिक पीरियड। लेटर नियोलिथिक पीरियड में चाइनीज़ हुआंगी रिवर के पास अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई। सिटीज़ की डिज़ाइन जो है वो रिलीजियस और आर्कियोलॉजिस्ट विश्वासों पर बेस्ड होते थे, जैसे कि फैंग शू, जिसका मतलब है हारमोनी, परमात्मा के साथ मेल जोल से आगे बढ़ना। देन यिंगो, जिसका मीनिंग था अर्बन डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। देन देयर इज़ फैंगली, जिसका मतलब था नेबरहुड डिज़ाइन। जाओ डायनेस्टी के दौरान चेंगजो सिटी डेवलप की गई, और जिसका वो किस सिंबल पे बेस्ड थी, होली फील्ड सिंबल पे। नाउ व्हाट इज होली फील्ड सिंबल? इस सिंबल के अनुसार एज वी आर गिवन इन डायग्राम, स्क्वायर 5 डोनेट करता था सिटी की इनर साइड को, जिसमें कि रॉयल पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी। इनर सिटी में ऑडियंस हॉल्स भी होते थे, टेम्पल्स होती थी, मार्केट बिल्डिंग्स होती थी। वो होती थी स्क्वायर 1, 3 एंड 7 एंड 9 में। इसके अलावा रोड्स होती थी जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक पैरेलल चलती रहती थी, और तभी कट ऑफ होती थी जब वो ईस्ट से वेस्ट किसी रोड के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होती थी। हाउसेज जो बने होते थे बैम्बू और सन-ड्राइड ब्रिक्स के बने होते थे या लकड़ी के बने होते थे, और जो अमीर लोगों के घर होते थे वो बहुत सुंदर डिज़ाइन किए होते थे, जबकि गरीब लोगों के घर जो होते थे सिंपल होते थे। और हर घर का दरवाज़ा जो है वो साउथ दिशा में होता था, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होता था। नेक्स्ट वी हैव आर्किटेक्चर। Houses in ancient China had central courtyard and curved roofs built to look like the bird wing. जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है, we can see in this example that ancient China के जो घर होते थे उनके बीच में एक वरांडा होता था, और उनकी रूफ कर्व्ड होती थी, जो कि पंछियों के परों की जैसे लगती थी। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ग्रैंडुलर चाइनीज़ आर्किटेक्चर, जिसको कि हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। मंगोलियन इन्वेजन होता था नॉर्थ की तरफ से, जो कि चाइना के लिए एक कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम था, और इससे बचने के लिए कई रूलर्स ने एक मजबूत और बड़ी दीवार बनाने की शुरुआत की, जो कि नॉर्थ बाउंड्रीज यानी कि मंगोलियंस के अटैक से इनको बचा सके। तो किन शी हुआंग द किंग ऑफ किन डायनेस्टी जॉइंट्स ऑल द फ्रेगमेंट्स ऑफ द वॉल इनटू वन लॉन्ग वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अलग अलग एम्परर्स ने अलग अलग जगह पे वॉल्स बनवाई थी, तो किन शी हुआंग जो कि किन डायनेस्टी का एक रूलर था, उन्होंने ग्रेट एंड वॉल ऑफ चाइना को कंबाइन करके जोड़ के एक कर दिया, और ये दीवार थी लगभग 2400 किलोमीटर लंबी थी और चाइना की नॉर्थ बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती थी। देन पेगोडाज। पेगोडा इज द एग्जाम्पल दैट इज गिवन बिलो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पेगोडा एक और एग्जाम्पल है उनके आर्किटेक्चर ब्रिलियंस की। वो रिलीजियस बिल्डिंग होती थी जो कि लकड़ी की बनी होती थी, और इसका मेन फीचर होता था इसकी पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स जो कि इसके अंदर होती थी। नेक्स्ट इज द सोशल कल्चर स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर चाइनीज सिविलाइजेशन का सेम था जैसे कि अदर सिविलाइजेशन में था। एम्परर जो होता था टॉप में होता था, फिर वो सोशल लेडर के अकॉर्डिंगली चलता था, जबकि फार्मर एंड स्लेव्स बॉटम में होते थे। लाइक वी आर गिवन इन द ट्रायंगल, एम्परर आता था, फिर उसके बाद स्कॉलर्स, देन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, देन आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन, एंड इन द एंड वी हैव फार्मर्स एंड द स्लेव। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।